the recording. Okay, great. So, thank you for joining. I Thank started you. the recording, and this entire thing will be a mix in both Hindi and English. Okay. Um, I don't have any script, like I said, but let's start by knowing a little about you, your family. Um how many members are there in your family currently? We are four members. Okay, you, your sibling, your Yeah. younger brother, Okay. That's your mom and dad, right? yeah. Yeah. Right. Okay, got it. And are you a student or I'm a are you student. in college? You're a student. Yeah. Okay. Student in college. Acha, first year. Yeah. Yeah. First year. Okay, great. And first year में तो अभी I think everything is happening online at Yeah. home. Yeah. Yeah. I believe. Oh, just a 6 months of classes and then everything is online. Hmm. Got it. Okay. So hmm. ठीक है. Should we play a game to break the ice? This game is like very वो करण जोहर वाला गेम है ना आई थिंक आपने देखा होगा टीवी पे बिल्कुल वो एक बिल्कुल. वर्ड बोलते हैं हाँ फास्टेस्ट जो क्या हाँ नाम है हाँ. आई फॉरगॉट द नेम रैपिड जिसमें फायर वो एक टाइप्स. वर्ड रैपिड फायर हाँ एक Yeah. वर्ड बोलता है एंड देन व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड यू जस्ट टेल टॉक अबाउट दैट ठीक है हाँ. Okay. सो लेट्स प्ले दैट आई जस्ट tell the name okay so when I say friends what comes to your mind It's a web series show. okay cool what about family Family. My parents. okay तो सिबलिंग को एक्सक्लूड कर दिया तुमने फैमिली से हाँ. मम्मी पापा पहले. अच्छा okay when we say health Health. Health. I would say my profession. okay passion Passion. Cooking. okay job Job. Job. I would say doctor. okay success Success is smile on my mom's face. okay ambition Ambition is uh, to make my father say that yes, my son has done something extraordinary. okay money Money doesn't matter. okay work Work, part of life. okay plants Plants, good friends. okay failure Failure, something which teaches you. okay hobby Hobby, again cooking. okay achievement Achievement, seeing myself what I want in next 10 years. sorry can you repeat the last part Seeing myself at the point where I think I should be in 10 years. acha okay hmm. Marriage Marriage, marriage, again a part of life. okay father Father, my whole world. okay dog Dog, a great friend. okay college College, place to learn many things. okay mom Mom, again my whole world. okay hmm interesting yeah I think I'm this was fun I asked pretty much I think covered if I have any more words later down the line of speaking to you would say Yeah, that you can ask anytime.
Got it. So tell me, what is it currently that is okay? Even before that, what does your typical day look like as of now? Like you are in first year of college. You have done about 6 months of college, and now you're attending online classes. You are at home with family. You are with your loved ones. How are you spending your time aside from कॉलेज का जो भी आपका ऑनलाइन क्लासेस होता है करिकुलम है व्हाट एल्स डू यू डू ऑन व्हाट डज योर टिपिकल डे लुक लाइक मतलब करंटली आई एम एंजॉयिंग द फेज ऑफ माई लाइफ। एक्चुअली क्या है, आई एम अ स्टूडेंट। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हम्म ज्यादातर बाहर ही रहते हैं घर से, मैं भी बाहर ही रहता हाँ हूँ। तो इस समय राइट मतलब मुझे प्लेंटी ऑफ टाइम मिल रहा है घर पर रहने का, सबके साथ रहने का, तो मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। हम्म मतलब जो भी एक पढ़ाई वगैरह है वो सब अपने बाद में फेज है, क्योंकि वो जब भी खुलेगा तब वो होना ही है। पर ये जो चीज़ है इसको हम मिस नहीं कर सकते, ये भी अपने फैमिली की तरफ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। हम्म नहीं तो वो ऐसा लगने लगेगा कि आप बिल्कुल सेपरेट होते जा रहे हो, वो चीज़ नहीं है। मतलब इस चीज़ को एंजॉय करना। हम्म एंड व्हाट अबाउट इससे पहले का जो टाइम था मतलब जो स्कूल वाला टाइम था हम्म, उसमें यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट होम विद पेरेंट्स विद जी। फैमिली राइट हाँ, तो वो वाला टाइम इस टाइम से कैसे सिमिलर है या अलग है सेम है या थोड़ा डिफरेंस है या हाउ डू यू फील अबाउट इट नहीं स्कूल वाला टाइम तो ऑलमोस्ट मैं सेम ही कहूँगा, बट डिफरेंस ये है कि हमारी सोच मैच्योर हुई है तब से। मतलब अब अच्छा हम सोच उस चीज, मैच्योर हुई हाँ अब हम उस चीज को जिस हिसाब से सोचते हैं है वही सेम चीज, पर जो हमारा देखने का नजरिया है जो अभी है और जो पहले था वो डिफरेंट है। हम्म पहले ऐसा था कि किस सेंस में थोड़ा सा एग्जांपल हाँ बताइए बताइए एग्जाम्पल जैसे हम स्कूल में थे तब जनरली क्या रहता था कि हमें सुबह स्कूल जाना है, आके होमवर्क करना है, शाम हाँ को खेलना है, खाना हाँ वाना खा के सो जाना है। अभी हम राइट मतलब मैच्योर हो गए, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं कि हाँ हमें अपना करियर के बारे में सोचना है, अपना ड्रीम पे फोकस करना है। तो मतलब कुछ कुछ हम्म चीज़ों में उनसे सेपरेटेड है, और भी चीज़ें देखनी रहती हैं। मतलब कुल मिला के हम्म रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं अभी। हम्म वही डिफरेंस है बस, बाकी जो वो दिनचर्या टाइप है वो तो लगभग सेम ही है, उसमें कुछ ऐसा खास डिफरेंस है नहीं। हम्म बट व्हिच लाइफ इज बेटर स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ हाँ, आई वुड से कॉलेज लाइफ डेफिनेटली। एंड व्हाई इज दैट बिकॉज मतलब हम कॉलेज को एंजॉय करने लगते हैं, हम स्कूल में कभी एंजॉय नहीं कर पाते मेरे हिसाब से। स्कूल में जो एंजॉय करने का टाइम था वो केवल 11 12 तक रहा, 2 साल। बाकी हम मतलब क्या बोलो, गधों की तरह चलते थे कि बट मतलब 11 12 में तुम तो काफी ऑपोजिट कहानी बता रहे हो बिकॉज मैं अभी तुम्हारे से पहले भी आई थिंक आई स्पोक टू अराउंड 3 4 पीपल टुडे सब हाँ काफी सारे लोग स्कूल कुछ कुछ लोग मतलब 3 4 में से दो आई थिंक स्कूल के थे एंड दो आई थिंक कॉलेज के थे जी। तो वो मुझे बता रहे थे कि 11th में आने के बाद वो बोर्ड का प्रेशर और जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर तो पढ़ाई में ज्यादा सीरियस हो गए थे एंड एक हाँ 10th तक हम मस्ती करते थे मेरे बट साथ यूर भी सेइंग वही कि था। हम 11th अच्छा आपके साथ भी वही था हाँ अच्छा वही था, पर मैंने वो जो कॉम्पिटिटिव वाला फेज था ना, मैंने उसको भी एंजॉय किया, मेरा वो भी पूरा मस्ती में अच्छा गया। अच्छा अच्छा हाँ ओके क्योंकि उस समय क्या हुआ था, मेरी सोच मैच्योर हो गई थी, मैं एंजॉय करना थोड़ा सीख गया था। राइट 10th तक मैं राइट कहूंगा कि बस हमारा वही गधों वाला टाइप वो चलता था कि हाँ स्कूल गए, स्कूल से राइट आके होमवर्क किया, बस। और कुछ भी नहीं है, मतलब जो राइट स्कूल में करा दिया वही है सब कुछ। राइट 11 12 में अच्छा हम अपने आप से करना कुछ कुछ सीखते हैं। सीख गए हाँ ओके इंटरेस्टिंग ओके तो बट आप कह रहे हो कि आपने 11 12 में भी एंजॉय किया एंड आप कॉलेज में भी अभी अभी जो फेज है वो एंजॉय कर रहे जी हो बट बिल्कुल। जब मैंने आपसे पूछा कि कौन सा ज्यादा बेटर आपके लिए which one are you enjoying more like for you स्कूल वाला फेज या कॉलेज वाला फेज तो इन कंपैरिजन टू 11 12 वाला फेज एंड अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज यू सेड दैट कॉलेज तो जी। तो ऐसा क्यों व्हाई इज कॉलेज मोर एंजॉयबल फॉर यू कंपेयर टू 11 12 वाला क्लास जो आपने किया है स्कूल में कॉलेज इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर और थोड़ा लेवल का हमें फ्रीडम मिल जाता है, मतलब हम और भी हम्म चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो हम्म मतलब जैसे 11 12 अगर कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली घर पे रह के कर रहे हैं, पर कॉलेज के टाइम पे हम बाहर रहते हैं, हम और भी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर हम्म रहे हैं, अकेला रहना सीख रहे हैं। हम्म तो वो करेक्ट मतलब मैं उस चीज को भी एंजॉय करता हूँ। गॉट इट जी। हम्म
हम्म। तो ये कैसे आप ये आप क्या आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है? 4 साल का कोर्स है आपका या हाउ इज इट? नहीं नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। अच्छा मेडिकल, तो आपका 5 साल का होगा आई थिंक, है ना? हाँ। ओके। हम्म। तो ये जो 5 इयर्स आपने डिसाइड किया है स्पेंड करने का, नेक्स्ट 5 इयर्स ऑफ योर लाइफ, जी जी। हाउ डिड यू डिसाइड, मतलब कि कैसे डिसाइड किया कि मुझे 5 साल एक मेडिकल कॉलेज में स्पेंड करना है, मुझे इस अ, लाइन में आगे बढ़ना है? हाउ डिड यू कम अबाउट डिसाइडिंग दिस? मुझे ऐसा है जो मतलब यही मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, मेरा हमेशा से यही ड्रीम रहा है। तो मुझे अच्छा। मतलब एट प्रेजेंट तो ये है कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे उसी लाइन में आगे बढ़ना है, उसी में सक्सेस करना है। उसके साथ में मुझे और एक्स्ट्रा चीजें भी सीखनी है, मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मुझे जिंदगी जीना सीखना है। मतलब डिफरेंट हम्म। फेजेस ऑफ लाइफ एंजॉय करने हैं। कभी आप रोते हो, कभी आप हंसते हो, कभी आप हम्म। डिप्रेशन में रहते हो, तो मुझे वो सब चीजें एंजॉय करनी है अपार्ट फ्रॉम पढ़ना। वो हम्म। चीज तो चलती हम्म। रहेगी। हम्म। ये मतलब विजन है राइट। मेरा ऐसा। राइट। बट डोंट यू थिंक कि वो आप अगर नहीं भी चाहोगे जी। डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस करना, वो अपने आप लाइफ विल गिव दैट टू हाँ हाँ बिल्कुल यू। नहीं, पर मेरा मेरा वही रहा है ना, मेरा हमेशा से वही रहा है, मैं हर चीज को एंजॉय करता हूँ। मुझे किसी भी अच्छा। चीज का मतलब प्रेशर नहीं है। 11 12 अच्छा में भी गॉट इट। जैसे स्टूडेंट्स से कंपटीशन वगैरह का प्रेशर लेते, मैंने वो भी कभी नहीं लिया। ऐसे ही मैं हम्म। ये भी चीजें हैं, मैं इनका भी कभी मतलब प्रेशर नहीं लेना है मुझे। वो बस मतलब गॉट इट। हाँ, हंसते खेलते हो जाता है, सब निकल जाता है। गॉट इट। तो अच्छा गॉट इट। सो व्हाट एग्जैक्टली ड्राइव्स यू अभी, लाइक व्हाट आर यू ड्रिवन बाय? आई एम ड्रिवन बाय माय जैसे करियर। अंदर से, मतलब जैसे होता है ना कि अ, कुछ एक चीज ड्राइव करती है इंसान को या मोटिवेट करती है कह लो, हाँ। या वो क्या चीज है आपके अंदर, मतलब तो व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू तो इन वही लाइफ? है जो मैंने गोल सेट किया हुआ है अपनी लाइफ में कि मुझे ये अचीव करना है। तो अच्छा। उसी के पीछे बस भागना है कि मुझे ये करना है, मतलब करना ही है, एनी हाउ बस करना है। ओके। तो जो आप अभी कह रहे थे कि द नेक्स्ट 10 इयर्स में जो आपको अचीव करना है जी अभी, जी तो जी जो आप कह बिल्कुल। रहे थे, ओके। तो आप, सो आई थिंक वन ऑफ देम इज लाइक टू, ऑब्वियसली कि आप कर रहे हो ये कोर्स, आप सक्सेसफुली करके निकलोगे कॉलेज से, आप डॉक्टर बनना चाहते जी। हो, राइट? एक तो यही हो गया। व्हाट एल्स इज इन योर लिस्ट ऑफ अचीवमेंट और गोल्स और ड्रीम्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट? अचीवमेंट तो इसके अलावा। एज सच कुछ नहीं, मुझे बेसिक मेरा यही है, मुझे ये सब तो करना ही है। इसके अलावा मुझे क्या बोलूं, मुझे घूमने का शौक है, मुझे थोड़ा बस वही एक्सप्लोर करना है मैंने, क्योंकि अभी तक ज्यादा कहीं कुछ घूमा नहीं है, यही मतलब जहाँ मैं रहता हूँ यही आसपास छोड़ के। तो हम्म। मतलब वही एक विजन है, बाकी एज सच मैंने अभी कुछ सोचा भी नहीं है, मुझे और कुछ करना हम्म। हो और कुछ सीखना हो। तो ओके, सो योर इमीडिएट थिंग दैट यू आर परस्यूइंग इज कि आपको डॉक्टर बनना है, सक्सेसफुली जो कोर्स कर रहे हो वो कोर्स बिल्कुल करके निकल आना है। बिल्कुल। बट इवन देन डोंट यू थिंक, लाइक कोर्स कर लिया, लेट्स से कोर्स कर लिया, आई थिंक आपके साथ और भी आपके कलीग्स होंगे, बैचमेट्स होंगे जो कर रहे होंगे कोर्स को, उसमें भी तो कंपटीशन की बात आ जाती है, राइट? हाँ, उसमें कंपटीशन आ जाता है, पर जब आप अपने आप को डिफरेंट मतलब बनाना चाहोगे, तो आप ऑब्वियसली बाकियों से डिफरेंट रहोगे। मतलब मेरा जो बैच है, अच्छा खासा बैच है, अच्छे हाँ। स्टूडेंट्स हैं उसमें, सभी वही चीज हाँ। कर रहे हाँ। हैं, सभी वही चीज कर रहे हैं। पर मतलब अपने राइट। बैच में रह के मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट करना है कि हाँ, मेरा अलग से नाम हो, कि हाँ ये हम्म। स्टूडेंट कुछ डिफरेंट है, ये कुछ अलग करेगा, ये कुछ अलग करता है, इस टाइप से। तो ये कैसे आप कर रहे हो, मतलब हाउ आर यू मैनेजिंग दैट, मतलब हाँ। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, ये मतलब ऐसा कह लो कि कॉलेज की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह होती है उनमें अच्छा पार्टिसिपेट करना। अच्छा। हाँ, पढ़ाई वगैरह में अच्छा पार्टिसिपेट करना, हम्म। उस टाइप से। गॉट इट। हम लोगों की क्या वर्कशॉप्स वगैरह भी होती है, तो उनको अटेंड करना। हम्म। तो ये फ्रॉग्स वगैरह काटते हैं क्या नहीं लैब नहीं, वगैरह में आप? हम जिंदा इंसान का, मरा हुआ इंसान, सॉरी, जिंदा जिंदा। इंसान का? मरा हुआ इंसान, हाँ। अच्छा। अच्छा अच्छा। कि कोरोना के पेशेंट्स भी कभी कभी देखते हो क्या नहीं नहीं, लैब्स फिलहाल तो में? नहीं।
अच्छा अच्छा। डोनेटेड तो बॉडीज रहती है, डेड बॉडीज रहती अच्छा हैं। अच्छा, ओके। ओके, आई एक्चुअली सफर फ्रॉम हीमोफोबिया, इट्स ओके अ फियर ऑफ ब्लड। तो ओके। इनफैक्ट कल ही हुआ मेरे साथ इंसिडेंट, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस बिकॉज टॉप ऑफ द माइंड में ही है। कल ही हुआ था कि कुछ गम में कुछ नाखून लग गया था एंड गम थोड़ा छिल गया एंड हाँ बहुत ही हाँ खून खून भर गया था मुंह में एकदम। हाँ तो खून देख के तो मैं बेहोश ही हो गया एकदम। हाँ। तो वो होता है कुछ तो लोगों को। वो फोबिया है बचपन से मुझे। सो हाँ उसके बाद से आई डिसाइडेड कि नहीं यार, हेल्थ केयर में तो कभी सोचना भी नहीं, क्योंकि मेरी बस की बात नहीं है। हाँ सो इंटरेस्टिंग है कि आप लोग इतना एडवांस्ड लेवल पे यू आर डाइसेक्टिंग डेड बॉडीज एंड हाँ। लर्निंग फ्रॉम दैट। सही है। तो आप कैसे सोच रहे हो अपने आप को डॉक्टर लाइन में, लाइक एज अ डॉक्टर हाउ आर यू प्लानिंग टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ इन डाउन द लाइन? बिकॉज कॉलेज में तो आई अंडरस्टैंड कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जी जी। आप एकेडमिकली अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हो, बट व्हेन यू फाइनली एंटर इन द रियल वर्ल्ड, जब हम्म। आप डिग्री लेके निकलोगे बाहर हाँ प्रोफेशन में, हाँ एट दैट पॉइंट डू यू थिंक, मतलब सो इज योर थिंग लाइक कि मैं जब निकलूंगा तब देखेंगे कैसे करना है, और डू यू हैव सम थिंग इन माइंड आल्सो कि मुझे अपने आप को एज अ डॉक्टर ऐसे डिफरेंशिएट करना है बाद हाँ। में डाउन द मुझे लाइन? वही वही मेरा विजन है। मतलब एट प्रेजेंट अगर आप सोचो कि दुनिया, मतलब इंडिया में सपोज आप किसी भी अच्छे डॉक्टर का अगर नाम लो, तो हम्म। किसका आपके मन में नाम आएगा, आप बताइए। यार एक एक अभी कल ही बात कर रहे थे हमारे घर में, एक बहुत जी। रिनोन्ड हार्ट सर्जन है। हाँ उनका नाम अभी मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा है, वो आई थिंक बॉम्बे में है शायद, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। हाँ बट वो है, उनके बारे में कल ही पापा बात कर रहे थे, बिकॉज ही इज अ डायबिटिक पेशेंट। हम्म। तो वो बात कर रहे थे, उनका नाम मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा, बट हाँ वो उनके बारे में चर्चा होती रहती है हाँ घर में। हाँ हाँ हाँ। वो है एक, अ, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा उनका। उनके उनके भी बहुत सारे हाँ। वर्कशॉप्स होते रहते हैं। तो ऐसे अच्छा मतलब अच्छा। मुझे अपने आप ओके। को उस टाइप से प्रेजेंट करना है कि हाँ, अगर कोई चीज, अच्छा। हाँ, कोई नाम ले, जैसे जो भी मैं सुपर स्पेशलाइजेशन करूँ, तो हाँ। उसमें मतलब अगर कोई नाम ले कि इसमें अच्छा डॉक्टर कौन है, तो मेरा नाम आना चाहिए उसमें कि ये है। हम्म। जैसे सपोज अगर कोई अच्छा डॉक्टर बोले, तो एट प्रेजेंट हाँ मैं कहूंगा कि जो एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर रणदीप हाँ गुलेरिया जी, मैं उनको बेस्ट हाँ। डॉक्टर कहूंगा अभी। तो मुझे अपने आप को उस जगह पे देखना है। ओके। हाँ अच्छा, गॉट इट, गॉट इट। जी। मेक सेंस। ठीक है, अंडरस्टूड। हम्म। तो ठीक है, इंटरेस्टिंग है। सो अभी तक आपके आपके सफर में व्हाट डू यू थिंक इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट अभी तक, जो भी आपने किया है? ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मैं कहूँगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना अभी तक। ओके, और एंड ग्रेटेस्ट फेलियर? ग्रेटेस्ट फेलियर, ग्रेटेस्ट फेलियर आई वुड से 12 बोर्ड्स में मार्क्स बहुत कम आए थे। ओके, तो उससे क्या, ठीक है, एडमिशन तो मिल गया आपको, हाँ। ठीक है। ठीक है। तो हमारे प्रोफेशन में अच्छा। उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कोई मैटर नहीं करा। राइट राइट। नहीं, आई थिंक आपने कंपटीशन के लिए भी तैयारी की होगी, तो हाँ हाँ थोड़ा हाँ बहुत चल जाता है। हाँ। उससे फर्क पड़ गया ना, बोर्ड्स मेरे खराब हो गए थे। हम्म। ओके। तो यार अब ठीक है, आई अंडरस्टूड योर पर्सपेक्टिव। अच्छा ये बताओ, अगर इफ आई हैड टू आस्क योर मदर, ठीक है, कि आपके बारे में अगर मैं पूछूं, तो व्हाट वुड शी से, व्हाट वुड योर मॉम से अबाउट यू? शी विल से सिंसियर बच्चा, मम्मी का ध्यान रखने वाला। अच्छा, एंड पापा क्या बोलेंगे? डैड? पापा बोलेंगे समझदार। ये तो सेम सेम ही हो गया यार, कुछ तो अलग हाँ हाँ। मतलब बताओ। वही अच्छा चीज ठीक है, है। मैं थोड़ा घर में अपना मतलब ऐसा हूँ, थोड़ा अच्छा। जिम्मेदार टाइप, ओके। जिम्मेदारी लेने के लिए। ओके, गॉट इट। हम्म। ठीक है, तो मतलब ठीक है, पेरेंट्स, आपके दोनों पेरेंट्स आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है फॉर श्योर। हाँ जी। ठीक है। हम्म। ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू यू, क्या सबसे ज्यादा क्या कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यू, सेम है डिस्पाइट यू दोनों का। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी, हाँ। दोनों का बिल्कुल सेम है। मैं गुस्सा बहुत ज्यादा करता हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। हम्म। एंड व्हेन इट कम्स टू देयर वरीज, ग्रेटेस्ट वरीज?
ग्रेटेस्ट वरीज तुम्हारे रेस्पेक्ट में, ओनली व्हेन इट कम्स टू यू। ग्रेटेस्ट वरीज तो ऐसा उनको कुछ है नहीं, क्योंकि मतलब उनको ट्रस्ट है मेरे पे, भरोसा करते हैं वो कि मैं मतलब ऐसा कुछ करूंगा नहीं, या मतलब जो भी है कुछ होगा नहीं, वो सही है। हाँ, बट कुछ चिंता नहीं करते, मतलब आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स के दिमाग में कुछ ना कुछ तो रहता है बच्चों को लेके। हाँ, चिंता मतलब फॉर यही है कि एग्जाम्पल मैं बस ये हाँ अपना बताओ। जो मैं कर रहा हूँ मैं इसको प्रॉपरली हाँ। क्लियर करूँ। हम्म। हाँ मतलब इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, कि सेटल हो हाँ जाए हाँ, मेरा बच्चा, सेटल सेटल, वो कह हाँ रहे हाँ, हो। वही। गॉट इट, गॉट इट, मेक सेंस। ठीक है, तो आई थिंक यू मस्ट इवन लाइक आप डॉक्टर बनने के बाद भी आई थिंक यू वुड प्लान टू स्टे विथ योर पेरेंट्स आई वुड और डेफिनेटली, नियर बाय योर पेरेंट्स। डेफिनेटली हम्म। if गॉट इट। possible then I will be with my parents or I will call them to me. गॉट इट। टेल मी समथिंग अभी। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग जो किया है अभी तक आपने, स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड? कुछ ऐसा है, कुछ मेमोरी या? एडवेंचरस, एडवेंचरस हाँ, तो कुछ जो भी करके नहीं आपको है। बहुत मजा आया हो एकदम, या फिर मजा आया हो, मतलब नॉट नेसेसरली एडवेंचर हो इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड, बट ऐसा कुछ जो एकदम बोलते हैं ना तूफानी, कुछ जो हाँ, करके एकदम मजा आ गया हो आपको, खुशी मिली हो जो ऐसा मुझे, लगा हो। मुझे वो कॉलेज में मिली थी जब मैंने पहली बार बॉडी काटा था। ओ। मुझे उस समय ओके। बहुत खुशी हुई थी, बहुत मजा आया था। अच्छा, ओके। तो क्या लाइक द एक्टिविटी ऑफ डाइसेक्टिंग, द एक्टिविटी ऑफ कटिंग द बॉडी में खुशी हम्म, मिली, या वो काटने के बाद जो आपने देखा एंड हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस किया? एग्जैक्टली वही जो काटने के बाद मतलब देखा कि हाँ ह्यूमन बॉडी का ये ओरिएंटेशन है, यहाँ पर यहाँ पर ये सब देख के वो बड़ा सेटिस्फेक्शन हम्म। टाइप मिलता है। क्योंकि हम लोग मतलब हम्म। बेसिकली कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें गलत हमेशा से परसेप्शन बना रहता है। सपोज जैसे हार्ट का बताया जाता है, हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं है, और हार्ट एग्जैक्टली हम्म। सेंटर में होता है, वो थोड़ा सा लेफ्ट की हम्म। साइड टिल्टेड रहता है। तो हम्म। ये जब मैंने लाइव देखा ना, तब मुझे बड़ा अंदर से सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ मैंने ये अपनी आंखों से देख लिया, तो मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ कि यही चीज है ऐसा। हम्म। हम्म। तो यूजुअली पता है, मैंने जैसे लास्ट जितने भी मैंने कॉन्वर्सेशंस किए हैं जी इस एज ग्रुप में, यूजुअली लोग बोलते हैं कि मैं कॉलेज में जा रहा हूँ एंड कॉलेज में गया, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या करना है, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट या एक्सप्लोरिंग, राइट? बट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके काफी छोटे उम्र से यू हैव दैट ड्रीम कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, ग्रो करना है। हाँ, हाउ मुझे डिड हाउ डिड दिस ड्रीम? मेरे हाँ। फैमिली की वजह से मुझे थोड़ा वहीं से इंस्पिरेशन है। मेरे फादर भी डॉक्टर है, मेरी सिस्टर है वो भी डॉक्टर है, कजन है, ओके। तो उनसे मतलब बहुत इंस्पिरेशन हम्म। वही शुरू से तो क्या देखते आए हैं सब। तो आप एज अ लाइक बचपन से जब से छोटे थे, यू हैव बीन ऑब्जर्विंग योर फादर्स लाइफस्टाइल एंड हाँ कैसे वो करते हैं ट्रीट बिल्कुल पेशेंट्स को बिल्कुल, एंड ऑल ऑफ दैट। वही वही से। हम्म। ओके। अच्छा। हम्म। गॉट इट। तो अच्छा, ठीक है, तो टेल मी समथिंग दैट यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम योर फादर एंड वन थिंग दैट यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम योर मदर। आ, मेरे फादर से जो मैंने सीखा है वो है शांत रहना। मतलब किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो, कैसा भी हो, जस्ट शांत रहो। जैसे मैं अपने आप को, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे किसी भी चीज़ पे गुस्सा आ जाता है, पर मैं अपने फादर से ये चीज़ सीख रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ गुस्सा करना, अगर मैं उसको शांत ठंडे दिमाग से सोचूं तो उसका सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट ही हो सकता है। हम्म। वेदर इट बी वर्क, मतलब काम से रिलेटेड भी हो या घर से रिलेटेड, जैसी भी सिचुएशन हो, बस शांत रहो। ओके। एंड मॉम से? और मम्मा से सीखा है कि डरो मत किसी चीज से। मतलब सपोज कुछ भी हो रहा है तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब सपोज जैसे मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है, मैं वाइवा देने जा रहा हूँ, तो मतलब मुझे उस चीज से डरना नहीं है। मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक्सटर्नल फेल कर देगा, मारेगा तो नहीं, ये सीन है।
मतलब उन्होंने बस यही सिखाया है कि कभी भी डरना नहीं है किसी भी चीज से, उसको मतलब अच्छे से फेस करो तो सब अच्छे से ही निकल जाए। हम्म। ओके। अच्छा ये बताओ, आपने बोला कि यू हैव नॉट बीन आउट मच, ज्यादा आपने घूमा नहीं है, ट्रैवल नहीं किया है। हाँ हाँ इफ मनी का कोई कंसर्न नहीं होता, लेट्स से आपके पास अनलिमिटेड अंधाधुन केबीसी में आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, हाँ ठीक है, हाँ एंड पेरेंट्स का भी कोई प्रेशर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ। तो वेयर वुड यू गो? कहाँ पर जाते हैं आप, कहाँ पर, वेयर वुड यू गो एंड हाउ वुड यू स्पेंड योर टाइम? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता। मैं अगर मुझे पैसे अगर मिल जाए इंस्टेंटली अभी इतने हाँ सारे, तो मैं मेरे हाँ। जो पेरेंट्स में भी डेप्ट है, जो लोन वगैरह है, मैं पहले उसको क्लियर कर, उसके ओके बाद ये सब सोचा जाएगा। ओके। ये किस चीज का लोन डेट है? इज इट हाउसिंग और हाँ हाँ, हाउस किस? हाउस लोन है। ओके ओके ओके। हाँ, अच्छा खासा है, हैवी लोन है। ओके ओके। ठीक है, ये मान लो ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, अभी हाँ अभी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तो हाँ। इन दैट केस व्हाट वुड यू डू? इन दैट केस आई वुड गो, मुझे अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है। मतलब मेरे पापा की हमेशा से विश है उनको ऑस्ट्रेलिया घूमना। मुझे सबसे हम्म पहले उनको वहां लेके जाना है। मुझे खुद भी देखना है, वो बात अलग है, पर मैं हम्म वही करता हूँ सबसे पहले। ओके, गॉट इट। हम्म। Yeah. एंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, मैं सोच रहा हूँ कि हम्म, अगर कोई बाउंडेशन ही नहीं होती हाँ इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, ओके, हम्म, तो ये एक घूमना तो ठीक है, एक पार्ट हो गया, तो आप अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने के हाँ लिए, बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी क्या करते? जैसे एक्टिविटी। आपने एक एग्जांपल दिया ना हाँ, बीच में, कि सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई थी जब मैंने कॉलेज में पहली बार, डिसाइड किया आ, था। हाँ, वैसे एक्टिविटी के टर्म्स में क्या करते इफ इफ कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बाउंड्री वो नहीं है, मतलब कोई डेट पे ऑफ नहीं करना। हाँ। एक्टिविटी रिलेटेड ऐसा तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, पर फिर भी थोड़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज कर लेते तो ज्यादा मतलब अच्छा लगता। थोड़ा ऐसा सोचा हम्म है मैंने, कभी कुछ किया भी नहीं है, पर मतलब विश है ऐसा करना है। एडवेंचरस हम्म एक्टिविटीज लाइक स्काई डाइविंग वगैरह, या फिर पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, इस हम्म। Acha, tell me this thing. Are you one of the toppers from your नो batch? नो नो, आई एम नॉट, नॉट एट You're not a topper. Are you in the top 10 percentile? ऑल। आई कैन से समटाइम्स। Okay. And what about 11th, 12th में? School level पे you are top 10 percentile. स्कूल लेवल पे आई वुड से अप टू 10th, टिल 10th आई वाज, Okay. आई वाज इन द टॉप। देन 11 12th में आई वाज इन टॉप 15 और टॉप 10। Hmm. And college में भी top 10, top 10 percentile में अभी हाँ हाँ currently. Hmm. Got it. जी। Got it. तो एक चीज बताओ, आपके एज के बच्चे जैसे नॉर्मली मैं देखता हूँ कॉलेज में भी लाइक हम्म, फुल ऑन अलग टाइप की मस्ती करते हैं, मतलब दारू, नशा, लड़कियां, पार्टी, व्हाट नॉट, राइट? हाँ इट्स वेरी रेयर टू कम अक्रॉस अ चाइल्ड हु इज हम्म, सो attached or so who cares so much about his own family, हम्म, right? हम्म, तो what makes you the way you are, and आपको क्या लगता है, लाइक what are your thoughts here, कि जब आप देखते हो आपके कलीग्स को एंड आपके दोस्तों को आपके एज के जो ऐसे करते हैं, मतलब हम्म, ऐसे मस्ती करते हैं, टाइम पास करते हैं एंड हम्म, ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं मस्ती में एंड एडवेंचर्स में, हाउ हम्म। डू यू फील अबाउट इट? उस टाइप से मतलब अब उन लोगों की जो मस्ती है, मुझे एक्चुअली देख के कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद हम भी करें। पर इन लास्ट बात ये आ जाती है, पहली चीज तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है जो मेरा शरीर खराब करे। बिल्कुल, ये तो मतलब सीधा सा सिद्धांत है, ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है। और अच्छा दूसरा, हाँ, दूसरा मेरे घर अच्छा। में कभी ऐसा माहौल रहा भी नहीं है। मतलब मेरे फादर, मेरे चाचू, मेरे दादाजी, इवन मेरे मदर की हम्म साइड भी, मेरे मामा वगैरह, ना कोई सिगरेट, ना कोई दारू वगैरह, कुछ भी नहीं।
इवन मतलब मेरे हम्म दादाजी तो ऐसे थे कि अगर कोई घर में आके गुटखा भी खा के अगर उसका रैपर भी फेंक जाए तो वो उसको हाथ से नहीं हम्म उठाते थे, वो उसको डंडे से बाहर करते थे। ऐसा ऐसा है। अच्छा। हाँ, तो मैं मतलब कुछ उसी हम्म चीज को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे खुद भी इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। मतलब गॉट इट। इंटरेस्ट की बात रहती है, कई लोगों में ये भी होता है कि अरे एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, मुझे इवन वो भी नहीं है। तो मुझे हम्म अपनी हम्म लिमिटेशन पता है कि अगर एक बार ट्राई किया तो वो एक का कब चार हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता चलेगा। हम्म राइट। इसलिए मतलब इंटरेस्ट तो ही नहीं है मेरा इन चीजों में। हम्म तो कुछ टेल मी समथिंग जो आम लोगों को नहीं पता है बट तुम्हें पता है, या जो मेरे आम लोग समझते नहीं है बट तुम समझते हो, मेरे बारे में ऐसा कुछ चीज। हाँ। मेरे बारे में नहीं नहीं, ये हेल्थ के बारे में हो सकता है, शरीर के बारे में हो सकता है, कुछ मिथ हो सकता है जो कॉमन मिसकंसेप्शन है जनता में, जो सिर्फ आपको पता है, एज अ बडिंग डॉक्टर, या फ्रॉम द फैमिली दैट यू कम फ्रॉम, जहाँ पे आपको ऐसी परवरिश मिली है एज अ चाइल्ड, जो जैसे आपने अभी आपने कहा ना कि कब एक का चार हो जाएगा पता नहीं है, बट ये हाँ चीज पता बहुत लोगों को, मतलब बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता, मतलब सीख, मतलब वो हाँ इसको ग्रैस्प कर पाते हैं। हाँ। तो व्हाट अदर थिंग्स डू यू नो, या ऐसा क्या चीजें हैं विच यू थिंक इज द ट्रूथ, जो आपको पता है कि रियलिटी है, बट लोगों के दिमाग में वो नहीं है, या लोगों को नहीं पता, या दे जस्ट डोंट गेट इट, बट ओनली यू गेट इट, एज अ बोलते हैं ना, जैसे यू सेड कि यू आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर पीपल, इन दैट सेंस, मतलब बेसिकली। इन दैट सेंस मैं ये कहूंगा कि लोग बाग ये कहते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, कई लोग कहते हैं ऐसे किन्हीं किन्हीं हम्म चीजों में। बट आई वुड से हम्म जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा या जितना भी मैंने सोचा है, तो उस हिसाब से ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरे अपने दिमाग के कंट्रोल में है। आप कुछ भी चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। इंसान अगर कुछ भी चाहे तो बस उसके दिमाग में वो होना चाहिए। और ओके, हाँ, जैसे आप कोई एग्जांपल दे सकते हो? एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहते हैं, सपोज कोई कोई भी है, उसका अगर एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर हाथ मतलब उसके चले गए उस चीजों में, तो वो ठीक है। इंसान क्या है, मतलब एक पहला तो ऑप्शन है कि होप ही छोड़ दे, अरे मैं तो जीना ही छोड़ दूंगा, मेरे तो हाथ ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। दूसरा वो क्या है, वो हम्म सोचता है फिर उस चीज में कि नहीं, मुझे जिंदगी हम्म जीनी है, मुझे अपने आप को फेस करना है, दुनिया को फेस करना है। हम्म तो वो वही सब काम पैर से करना सीखता है। हम्म तो वही चीज है कि इंसान चाहे तो सब कुछ हो सकता बट उसके दिमाग में होना चाहिए। है। हाँ इस बिल्कुल। पॉइंट को थोड़ा सा आप स्ट्रेच करोगे, इसको दिमाग में होना चाहिए, मतलब देखो, क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? सोचना चाहिए कि मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ, मतलब ऐसी चीजें तो कई ओके। लोगों के दिमाग में आती हैं, सभी के आती हैं हम्म कि मतलब हर कोई अपना राइट। ड्रीम कुछ बनाता है, पर मतलब उस पे इतना फोकस नहीं कर पाता। करेक्ट। तो जब बिल्कुल। आप उसमें बिल्कुल ही घुस जाओगे, मेरा ये कहना है हम्म कि आप उसको हम्म बहुत बुरी तरीके से चाहोगे, जो वो कहते हैं ना शिद्दत से चाहते हो, तो वो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल होगा। गॉट इट। एंड व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों लगता है आपको कि कोई भी चीज अगर हम शिद्दत से चाहेंगे तो वो 100% पॉसिबल होगा, देयर इज नो अदर वे? बिल्कुल। वो आप इसलिए कह रहे हो कि वो हमारे दिमाग में, जहन में घुस जाएगा, मतलब दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? हाँ हाँ, दैट इज, बस वही घुसने वाली बात होती है। अच्छा। तो इज देयर लाइक, आप एज अ बडिंग डॉक्टर, आर यू सेइंग दैट द माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट हम्म। इन द ओवरऑल बॉडी? हाँ बिल्कुल, माइंड इज द एपिसेंटर। मतलब बॉडी अच्छा में जो कुछ चल रहा है सब कुछ दिमाग से ही चल रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब इंसान का दिमाग जो है वो ऐसी चीज है कि उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम्म गॉट इट। एक्चुअली क्या है, मेरा जो ड्रीम है वो भी इसी फील्ड में है, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा। हाँ, तो मेरा मतलब मैं उसी के बारे में पढ़ता रहता हूँ या मतलब सोचता रहता हूँ, तो मैंने मतलब अभी तक यही कंक्लूड। हेलो।
हेलो हेलो। हेलो। हाँ सॉरी, आपकी बीच में आवाज कट गई थी, जस्ट अभी वापस आ गई। अच्छा हाँ, ओके, क्या कह रहे थे अब आ आप रही है। न्यूरोलॉजी में इंटरेस्टेड हो? हाँ, अब आ रही है हाँ तो वही मतलब मैंने जितना वो पढ़ा है, जितना मैंने मतलब डिस्कशन किया है मेरे जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं सबसे, हाँ। तो उनका भी यही कंक्लूजन है कि मतलब दिमाग ही है जो सब कुछ खेलता है, हम्म। वही सब कुछ कराता है आपसे। बट दिमाग को भी तो आई थिंक अभी तक साइंस अच्छी तरह से जान नहीं पाया है, हाँ लाइक ये भी है, ये भी इन है। एंड आउट, बिल्कुल है अभी, क्योंकि राइट। हम जितना दिमाग अभी हमने जितना स्टडी किया है वो केवल कितना कह लो 30% या 40% है। हम्म। अभी हम कई चीजें तो डिकोड ही नहीं कर पाए हैं, करेक्ट। पर जितना हमने पढ़ा बिकॉज है उसमें इतना यही है। कॉम्प्लेक्स है। हाँ, बिकॉज इट्स जस्ट आई थिंक द न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं, जो इट्स लाइक हाँ बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी के थ्रू भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं हाँ बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट, बट हाँ। दे हैवंट बीन एबल टू डू इट सो फार। इंटरेस्टिंग। आपका मेंटल हेल्थ को लेके क्या कहना है? हेलो हेलो। आई थिंक आई लॉस्ट यू अगेन। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ, आई कैन हियर यू नाउ। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा था, जैसे अभी आपने ये बोला रिसर्च वगैरह जो चल रही है, तो ये भी हम्म वही चीज है कि ये कभी ना कभी जाके कंप्लीट होगी। अब कंप्लीट क्यों होगी? कि जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं हम्म उनके बस वही है, दिमाग में घुसा हुआ है कि उनको ये चीज करना है, तो वो कभी ना कभी हम्म कंप्लीट कर ही लेंगे यही हम हम्म सबके साथ भी है, पर हम लोग उसको बहुत छोटे लेवल पे रखते हैं। हम्म तो हम्म। वही है। गॉट इट। हम्म। गॉट इट। तो ये आपका, जैसे मेरा ये सवाल था मन में कि जी। आपका मेंटल हेल्थ को लेके आपका क्या कहना है? व्हाट आर योर व्यूज? मेंटल हेल्थ भी मैं कहूँगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ में मतलब जो फर्स्ट वर्ड है मेंटल, दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन। उसमें भी वही हम्म सोचने की बात है। अब हम्म नॉर्मली क्या है, इंसान जो कहा जाता है डिप्रेशन में है, हम्म। तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है कनेक्शन में। हेलो। हेलो। हाँ, अब वापस आई कैन हियर यू बैक। कुछ कनेक्शन में आई थिंक प्रॉब्लम है। एक मिनट। एनीवेज। हाँ मेरी साइड से तो प्रॉपर है। हाँ, नहीं ठीक है। आई थिंक लास्ट आप जो कह रहे थे कि मेंटल हेल्थ में हाँ जो हाँ वर्ड है मेंटल है। हाँ, दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन। तो वही है ओके। मतलब जैसे सपोज किसी का कहा जाता है कि वो डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन हम्म इज अ सीरियस प्रॉब्लम, वो बीमारी है। मैं उसको मतलब हम्म नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, पर उसमें क्या है, सोच का डिफरेंस हो जाता है। इंसान बहुत ज्यादा सोचता है उसमें, पर अगर वो हम्म उसी पर वो बहुत उसमें नेगेटिवली सोचता है, अगर उसी को वो कन्वर्ट करके नेगेटिव को पॉजिटिव में कर ले, तो वहीं बहुत डिफरेंस हो हम्म जाता है, वो अपने आप भी सही हो सकता है। हम्म पर इंसान सोचता नहीं है। इंसान के मन में क्या है, डिप्रेशन के टाइम पे एक नेगेटिव थॉट आया तो वो एक के चार हो जाते हैं, चार के वो 8 हो हम्म जाएंगे, 8 के 16 हो जाएंगे, ऐसा चलता है। अगर वो 16 में से हम्म किसी एक को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा, तो वो बहुत फर्क पड़ हम्म जाता है उससे। हम्म। बट आई थिंक जो जैसे आप जो ये 5 इयर्स का आप कर रहे हो कोर्स, इसमें कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड होता है हाँ कि नहीं इसमें होता है? हमारा जस्ट सब्जेक्ट है, एक साइकोलॉजी है, प्री अच्छा, फाइनल होता ईयर है। का। ओके। हाँ। अच्छा, उसमें सिखाते हैं ये सब।